So welcome to an intro to AI engineering, and here we are going to learn all the concepts that you would need to work with AI systems and to design or build AI systems from scratch. मतलब scratch नहीं exactly. I'm guessing you have some basic idea, some basic knowledge about Python or JavaScript, because these are the two main languages that people can build AI systems in right now, Python being the most prominent one. How are we going to learn? We are going to learn using my holy grail is a book called AI Engineering, same name, by Chip Yuan. And most of the theory concepts, even the learning pattern, even diagrams like these are actually directly driven from the book. I really love the book, and I would, if you are into reading, if you like reading technical books, then I would definitely recommend you to check it out. It will help you build a better foundation. Anyways, let's start. So AI engineering होती क्या है basically? So AI engineering refers to the process of building applications on top of foundation models. Okay, now there are a lot of terms here. ठीक है, अगर ये पूरी जो definition है इसमें एक टर्म आ गया AI engineering, ठीक है, एक टर्म आ गया foundation models. फाउंडेशन मॉडल्स क्या होते हैं ये नहीं पता है हमें, कोई बात नहीं. वी आर गोइंग टू कवर दैट in the coming seconds, minutes, I don't know. So people have been building AI applications for over a decade. ठीक है, अभी तक जो भी AI applications, अभी तक हम जिस भी चीज़ को AI कहते थे वो एक्चुअली में मशीन लर्निंग की होती थी. मतलब जैसे पहले कहते थे कि सिरी इज़ एन AI असिस्टेंट, तो सिरी एक AI असिस्टेंट नहीं था. इट वॉज जस्ट अ वेरी गुड कैलकुलेटिव मशीन लर्निंग मॉडल जो कि आपसे थोड़ी थोड़ी बात कर सकता था. बिकॉज ये आपने खुद देखा होगा कि पहले के सिरी में कितना अच्छा लगता था, बट जब से ChatGPT इंट्रोड्यूस हुआ है पहले का सिरी कितना चूत का लगता है, कितना डम लगता है, राइट? सो वाई इज दैट? बिकॉज अर्लियर the entirety of AI systems was dependent on a concept called machine learning and deep learning. ठीक है, ये दो काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स थे और टेक्निक्स कह सकते हैं, मतलब बबल्स थे. बबल तो खैर AI ही है, बट तो उन सब के बेसिस के ऊपर चीज़ें बिल्ड होती थी और दे वर कॉल्ड AI एप्लीकेशंस. अब हम उन्हें AI एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अब हमारे पास एक नया फॉर्म ऑफ AI है जो कि है LLMs. इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल कि आज से 4-5 साल बाद हम आज की AI एप्लीकेशंस को भी AI नहीं कहेंगे, हम उन्हें LLM एप्लीकेशंस कहेंगे, क्योंकि फ्यूचर का AI इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मच बेटर देन दिस LLM दैट वी हैव. सो जस्ट लाइक पहले का मशीन लर्निंग उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था, बट आज बहुत ही डम लगता है. वैसे ही आज LLMs बहुत अच्छे लगते हैं, वो 5 साल बाद बहुत डम लगने लगेंगे. सो पहले की जितनी भी AI एप्लीकेशंस थी, दे आर कॉल्ड एज मशीन लर्निंग एंड इंजीनियरिंग, एंड उनको बनाना इज़ MLOps. MLOps इज ML ऑपरेशंस. तो जैसे आपका DevOps होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वे में वी हैव MLOps. It's just for the whole planning and implementation of machine learning in a real world system. ठीक है, but the main question is कि why are we talking about the AI engineering now? क्योंकि it's a fad. Every company wants to push AI products. Every company wants to remove people who don't know AI. Every company wants to build AI products. Everybody wants to know how to build AI products to get better jobs. You want better ideas, you want better opportunities, you want to build better system, and AI can definitely help you build better systems. Anybody who says that AI is a useless technology has not tried it even. It's a great technology, और टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरह देखना चाहिए. उसको भगवान की नज़रों से नहीं देखना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकती है. वो कुछ भी नहीं कर सकती है, उसकी लिमिटेशन है. LLM इज़ ऑनेस्टली एन अमेजिंग पीस ऑफ टेक, बट जस्ट लाइक एनी अदर पीस ऑफ टेक इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, एंड वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट. उन लिमिटेशंस से
मतलब इंट्रोडक्शन लेने से पहले हम ये छोटा सा डायग्राम टाइप जो मैंने यहाँ लगाया वो देखते हैं, ठीक है। नाउ AI इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो अ स्टैक, फुल स्टैक, बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस, कुछ भी। सो मेरा मानना ये है, एंड इवन द ऑथर इन दिस बिलीव्स कि AI इंजीनियरिंग इज़ जैसे फुल स्टैक होता है, बैक एंड जैसे आपके टेक स्टैक्स होते हैं, बैक एंड होता है, कुछ लोगों का फ्रंट एंड होता है, कुछ लोगों का AI इंजीनियरिंग है। पिछले 2-3 सालों में AI इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कमिंग अप टू बी अ कोर स्टैक दैट यू हैव टू अग्री। आई अग्री, इफ यू डोंट दैट्स योर चॉइस। देन और इस AI इंजीनियरिंग स्टैक के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले जो लोग होते हैं, मोस्टली लोग 80% ऑफ जितने भी लोग होते हैं वो हमारे यहीं पे रह जाते हैं, विच इज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन एक डेवलपमेंट में वो क्या करते हैं, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट बना देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा इवैल्यूएशन कर देते हैं, और वो एक AI इंटरफेस बनाते हैं। मेन काम उनका होता है चैटबॉट पे थोड़े प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दिया उसको, थोड़ी सी इवैल्यूएशन कर दी कि बस वो थोड़ी गालियाँ ना बकनी शुरू कर दे। दैट इज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये बेस लेयर होती है, मतलब ऐसे देखने में मतलब ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेयर होती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको एक बेसिक आइडिया है अबाउट AI इंजीनियरिंग। पर फिर कुछ लोग होते हैं जो इनसे थोड़े महारत ही होते हैं, दे कम अंडर मॉडल डेवलपमेंट। मॉडल डेवलपमेंट में आते हैं कुछ नई चीज़ें जो आपको नहीं पता होगी, जैसे कि इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन। दिस माइट नॉट बी अ कॉमन कॉन्सेप्ट फॉर एवरीवन। डेटा सेट इंजीनियरिंग, दिस सीम्स नोइंग कि अच्छा डेटा सेट बनाना होगा। इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, तो ये चीज़ें अभी पढ़ते हैं। मॉडलिंग एंड ट्रेनिंग, तो ये जितने भी GPT है, GPT क्या होता है, GPT इज़ अ मॉडल, चैट GPT इज़ नॉट द मॉडल, ठीक है। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है GPT। उस मॉडल के ऊपर जो चैटबॉट बनता है उसको चैट GPT कहते हैं। सिमिलरली जेमिनी जो है, जेमिनाई जो भी कह लो, दैट इज़ ऑल्सो एन LLM। वैसे ही जो कंपनी है एंथ्रोपिक का एक चैटबॉट है क्लॉड, उसका नाम क्लॉड है। वो काम करता है या तो ओपस पे या सोनेट पे। ये दोनों क्या हैं, अगेन ये दोनों उसके LLM मॉडल्स हैं, ठीक है। और इवैल्यूएशन आप देखोगे कि हर लेवल पे इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है, और इवैल्यूएशन की जो महा लेवल होता है उसको मॉनिटरिंग में कह देंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर AI एप्लीकेशन में होता ही है, वो आप यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाली लेयर में फंस के रह गए हो ना, तो आप API कॉल्स कर रहे हो, तो जो API कॉल्स हैं वो एक्चुअली में तो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर ही रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्यूट तो हर API को चाहिए कॉम्प्यूट, हर LLM को बहुत सारा कॉम्प्यूट चाहिए। इनफैक्ट डेटा मैनेजमेंट हो रहा है कि कहाँ से कैसे कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, वो फिर सर्विंग हो रहा है। सर्विंग क्या होता है कि मॉडल जहाँ पे भी होस्ट होता है वहाँ से आपको सर्व करने के लिए API लग रही है ना, तो वो सर्व हो रहा है बीच में। दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज़ अ वेरी ओवरव्यू, प्लीज़ मुझे मानने बताना। एंड मॉनिटरिंग इज टू सी कि हमारा LLM परफॉर्म कैसे कर रहा है। सो दिस इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल जो कि बहुत कोर है, जिस पे बहुत कम लोग अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। मेन प्रॉब्लम इसकी ये है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि AI इंजीनियरिंग और ML इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। जैसे पहले भी थोड़ा मैंने आपको इंट्रो दिया था कि मतलब कोई ML सीखता था, कोई ML पढ़ रहा है, और आप AI पढ़ रहे हो, तो दोनों में क्या फ़र्क है। पहली बात तो वो ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि देखो ML इज़ लाइक द फाउंडेशन फॉर AI, ठीक है। अगर आपने फाउंडेशन नहीं पढ़ी है तो यू आर बाउंड टू फक अप, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता है, आपको आइडिया नहीं है कि इवैल्यूएशन कैसे होती है ML मॉडल्स की, तो यू विल हैव अ वीकर आइडिया अबाउट इवैल्यूएशन इन AI मॉडल्स, ठीक है। देन जितने भी एरर फंक्शंस होते हैं दे आर अलॉट सेम, दे आर अलॉट सिमिलर। अगर आपको LLM सीखना है तो आपको उसके पहले ट्रांसफॉर्मर सीखना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्मर सीखना है तो आपको पहले इंकोडर डिकोडर सीखना पड़ेगा, और आपको RL रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखनी पड़ेगी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखने के लिए आप एक बार LSTM भी, और फिर आप सोचोगे एक बार LSTM भी देख लेती हूँ, फिर आप मतलब ऐसे 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 एक बहुत बड़ी साइकिल में चले जाओगे, जो कि बहुत बड़ा ख़राब चीज़ है।
इससे तो अच्छा है आप एक तरीके से ML एक सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा थोड़ा इंट्रो ले लो, so that you have a brief idea about ML, you have a good idea about, not brief, sorry, good idea about ML, and then you can move forward with AI systems. Okay, so yes, there are some prerequisites for learning AI systems, but hopefully I will be able to cover them. ट्रेडिशनली ML इंजीनियरिंग जो होती है इट इज़ वेरी पाइथन सेंट्रिक, ठीक है। ML इंजीनियरिंग में ज़्यादातर मैंने और कोई लैंग्वेज खास देखी नहीं है और इतना कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस पाइथन ही दे रही है वहाँ पे। ना बिफोर फाउंडेशन मॉडल्स मोस्ट पॉपुलर ML फ्रेमवर्क्स थे वो यूजुअली पाइथन APIs ही सपोर्ट करते थे, पर क्योंकि हर जगह जावास्क्रिप्ट वाले लोग चढ़ जाते हैं तो इसीलिए आजकल जावास्क्रिप्ट APIs भी आने लग गई हैं। और ये सच में वैसे खैर बहुत यूज़फुल होती हैं अगर आपको डायरेक्टली अपने फ्रंट एंड के अंदर इंटीग्रेट करना है, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही काम है कि आप फ्रंट एंड में सीधा पाइथन API कॉल करो, हो गया। तो तब LangChain है, जैसे LangChain एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है अगर आपको AI एप्लीकेशंस बनानी होती हैं। ये अलग अलग कंपोनेंट्स को ना चेन्स की तरह इकट्ठा कर देता है। मान लो आपको एक कंपोनेंट 1 है जो सर्च कर रहा है और एक कंपोनेंट 2 है जो समरी दे रहा है सर्च की, उन दोनों को जोड़ना है तो वो चेन एलिमेंट 1 चेन एलिमेंट 2 और LangChain लिटरली उनको चेन की तरह जोड़ देता है ताकि वो एक के बाद एक काम करें। तो एक ऑर्डर्ड वे में चलने के लिए LangChain इज़ वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग AI एप्लीकेशन। Transformers.js आ गई है एक लाइब्रेरी जिसमें आप ट्रांसफॉर्मर्स जावास्क्रिप्ट में बिल्ड कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर्स इज़ बेसिकली द फाउंडिंग टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आज की डेट में ChatGPT 2022 में ChatGPT बन पाया। फिर OpenAI's नोड लाइब्रेरी, OpenAI ने भी अपनी एक नोड की लाइब्रेरी, नोड सपोर्टिव लाइब्रेरी, और वर्सन ने भी अपना AI SDK निकाल दिया है, वो तो बहुत ही बढ़िया है, इट्स लिटरली वेरी गुड, चेक इट आउट। सो अब ट्रेडिशनली ML इंजीनियरिंग यू यूजुअली स्टार्ट विद गैदरिंग डेटा एंड ट्रेनिंग अ मॉडल। अच्छा, अब ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि कल्चरल शिफ्ट क्या हुआ है। कल्चरल शिफ्ट बहुत बढ़िया हुआ है। क्या कल्चरल शिफ्ट है इज़ जब जैसे मैं 2022 से मैंने जब स्टार्ट किया था 2022 में मशीन लर्निंग सिस्टम्स पढ़ने शुरू करे थे, डीप लर्निंग सिस्टम्स पढ़ने शुरू करे थे, रिसर्च पेपर लिखे थे, तो बहुत मुश्किल होता था पूरा सिस्टम, क्योंकि मतलब डेफिनेटली रिसर्च बहुत मुश्किल होती थी आज से 3-4 साल पहले। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती थी, आपको मैनुअली सारा डेटा, मतलब आप स्क्रैपर लगा दो पर ठीक है फिर भी आपको डेटा गैदरिंग करनी पड़ती, वो इतने अच्छा नहीं कर पाता था स्क्रैपिंग वगैरह कुछ भी, ठीक है। और आपको खुद मॉडल लिखना था, उस मॉडल को समझ के तोड़ के, मतलब ऐसा होता है मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर ना लेयर्स होती हैं। क्या कर रही हूँ, मशीन लर्निंग मॉडल्स में ना लेयर्स होती हैं, ठीक है, कि एक लेयर ये करेगी, एक लेयर ये करेगी, एक लेयर। तो मतलब आपने इनपुट डाला हाई, तो पहले हम उसको 1 2 3 4 नंबर में मतलब ऐसे मैट्रिक्स बना के उसको तोड़ते हैं, फिर उस मैट्रिक्स को हम इनकोड करेंगे, फिर उसको यहाँ भेजेंगे, ये कुछ करेगा, फिर एक दूसरी लेयर में डालेंगे ये कुछ करेगा, फिर तीसरी लेयर में डालेंगे ये कुछ करेगा, फिर चौथी लेयर में डालेंगे वो कुछ करेगा, उसके बाद उसका आउटपुट आएगा बाय, ठीक है, मतलब कुछ भी। तो ऐसा होता था, तो आपको पहले सारा डेटा गैदर करना पड़ता था कि मुझे इनपुट क्या क्या करना है और उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। और फिर हमें मॉडल बनाना पड़ता था, फिर उस मॉडल को हमारे गैदर डेटा पे ट्रेन करना पड़ता था कि देख जब भी कोई हाई बोलेगा तुझे बाय बोलना है, जब भी कोई थैंक यू बोलेगा तुझे फक यू बोलना है, मतलब ऐसे जो भी तुम्हारा मतलब यूजुअली ट्रांसलेशन वैसे वाला अच्छा होता है, बट ठीक है। तो जो भी तुम्हारा काम है, तुम्हारे मॉडल का प्रिडिक्शन है, मान लो कि ऑपोजिट वर्ड प्रिडिक्शन या कुछ भी, ठीक है ना। बिल्डिंग द प्रोडक्ट कम्स लास्ट। सबसे बड़ी बात ही यही थी कि पहले बिल्डिंग द प्रोडक्ट यूज टू कम लास्ट, बट विद AI मॉडल्स रेडिली अवेलेबल टुडे आपको ना गैदर करना है डेटा, ना उसको ट्रेन करना है, ना आपको मॉडल बनाना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ एक API कॉल करनी है। पहले के टाइम पे जब आप मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल्स बनाते थे तो आपको उसकी API नहीं मिलती थी, उसके कुछ कुछ छोटे छोटे फंक्शंस होते थे जो XGBoost या मतलब कुछ कुछ फंक्शंस होते थे, कुछ कुछ लाइब्रेरीज थी जो कुछ कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती थी जिससे आप मशीन लर्निंग थोड़ी ईजिली कर सकते थे। बट कॉन्वर्जेशनल न्यूरल नेटवर्क्स अगर आपने सुना हो तो
तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स जो थे या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो थे, LSTM मॉडल्स जो थे, ये सब आपको खुद बनाने पड़ते थे, खुद ट्रेन करने पड़ते थे। जैसे कैट और डॉग प्रिडिक्टर है तो उसमें कैट्स और डॉग्स की फ़ोटोज डालनी पड़ती थी, उसको ट्रेन करना पड़ता था घंटों तक एक GPU लगा के। एक मुश्किल से GPU मिलता था, बहुत महंगा GPU, उस पर मुश्किल से वो ट्रेन होते थे। फिर उसके बाद वो एवे टेढ़े आंसर देते थे, फिर आपको उसको मॉडल को ट्वीक करना पड़ता था। इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग बेसिकली। दे हैड अ डेटा, देन यू बिल्ट अ मॉडल फॉर दैट डेटा एंड देन आपका एक प्रोडक्ट बनता था कि हाँ ये बनाएगा मेरा। अब क्या हो रहा है कि लोग उल्टा ही चलने लग गए हैं, मतलब प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच हो गई, कि आप API कॉल करो जिस भी आपको मॉडल की लेनी है, आप उससे अपना प्रोडक्ट बना लो। उसके बाद अगर मैं स्केल कर रही हूँ और मुझे चाहिए थोड़े बेटर आंसर्स, मान लो कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि फैशन स्टाइलिस्ट का काम करता है, AI फैशन स्टाइलिस्ट। मैंने एक API बनाई जो सीधा उसको बता रहे हैं, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर दी उसमें थोड़ी कि जब भी कोई यूज़र पूछे तुम एक प्रो फैशन स्टाइलिस्ट हो, जब भी कोई यूज़र पूछे इस कपड़े के साथ क्या पहनो, तुम्हें उसका कुछ तो बताना है। उसके बाद लोग, अब मेरी बहुत अच्छी स्टार्टअप चल गई, उसके बाद मैं और डेटा गैदर करूँगी कि मैं अपने मॉडल को कैसे इन्हेंस कर सकती हूँ। तो फिर लोग आते हैं कुछ टेक्निक्स पे, जैसे फाइन ट्यूनिंग होती है जिसमें हम अपने मॉडल के वेट्स चेंज कर देते हैं, मतलब ये मॉडल की जो ट्रेनिंग प्रोसेस थी उसमें बदलाव कर देते हैं थोड़ा। मॉडल के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको तोड़ के स्पेशली उसको ट्रेन करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ फैशन को जानता हो, उसको और कुछ नहीं आता होगा उसको, लेकिन वो फैशन का महाज्ञानी होगा। ऐसे टाइप की जो आउटलुक है वो अब AI इंजीनियरिंग की वजह से आ गई है। दिस इज़ द राइज ऑफ AI इंजीनियरिंग, और ये किसी शॉन वांग ने अपने 2023 के पेपर में बताया था, जो कि चिप ह्यूएन ने अपनी बुक में साइट किया है। अब आते हैं हम लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर। क्या होते हैं लैंग्वेज मॉडल्स, किस चिरांत का नाम है लैंग्वेज मॉडल्स? लैंग्वेज मॉडल्स ही हैं जिन्होंने पिछले 3 साल से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी, अपने कदमों, किसी में भी लग रखा है। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल्स पहली बात तो करते क्या हैं, इनको ये कहते क्यों हैं? लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं दे इनकोड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट वन और मोर लैंग्वेजेस। ठीक है, हम अभी ये वाली चीज़ को थोड़ा छोड़ देते हैं और हम फोकस करते हैं, मतलब वन और मोर लैंग्वेजेस की बात हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि लैंग्वेज मॉडल का मेन काम क्या है, कि ये इनकोड करता है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि मैं इसको बेसिकली होता क्या है कि या पहले पूरी डेफिनेशन बताएं। इंट्यूटिवली दिस इंफॉर्मेशन जो ये इनकोड कर रहे हैं tells us how likely a word is to appear in a given context. So for example, given a context that my favorite color is dash, the language model that encodes English should predict blue more often than car. ठीक है, अब दैट इज़ बेसिकली द एसेंस ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स। ये कर क्या रहे हैं, ये इनकोड कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि इनकोड कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ऐसा है कि लैंग्वेज मॉडल्स का काम ये है कि आप इसमें कोई भी इनपुट डालो, आपने अगेन इसमें कोई भी इनपुट डाला, ठीक है, ये आपके इनपुट को पहले मान लेते हैं ब्लैक बॉक्स है और इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनके पास पूरी डिक्शनरी खुली हुई है, पूरी की पूरी वर्ल्ड की डिक्शनरी इनके पास खुली हुई है, और मान लो हर डब्बा एक वर्ड है, डिक्शनरी का एक एक वर्ड हर डब्बा। ठीक है, ये हर वर्ड के साथ चेक करते हैं कि जो भी आपने कहा है उसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। जैसे अगर हमने कहा है कि हाय माय नेम इज़, ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ हाय माय नेम इज़, तो अब इन्होंने देखा माय नेम इज़ एसहोल, तो ये वर्ड है एक एसहोल उनकी डिक्शनरी में, और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैच नहीं करता है। इन्हें कैसे पता मैच नहीं करता है, ये ब्लैक बॉक्स ने एनालाइज कैसे करा, क्योंकि अगर आपको याद हो यहाँ पे थोड़ा सा पहले जो हमने गुचड़ में पढ़ा था कि देखो जो कंपनी है जिसने भी AI इंजीनियर, जिसने भी ये API बनाई है, मतलब ओपन AI है जैसे,
ओपन एआई ने एमएल इंजीनियरिंग के ही प्रिंसिपल्स फॉलो करे हैं। उसने पहले पूरी दुनिया का डेटा, लिटरली पूरी दुनिया का डेटा उन्होंने फीड किया है। इंटरनेट से जितना डेटा दे कुड स्क्रैप, all of Reddit, all of the PDFs present, all of everything that they could get, including your personal and private information which was available freely on the internet. They got that information, they fed it into the model as pairs. क्या? As pairs. कि ये वाली जो चीज़ है, मतलब उसका आउटपुट ये होता है। अब उन्होंने क्या फीड किया? उन्होंने बहुत सारी बुक्स फीड करी, ठीक है, बहुत सारी बुक्स फीड करी। तो बहुत सारी बुक्स में लिखा था हाय माय नेम इज़ एना, हाय माय नेम इज़ आजकल कौन चल रहा है वो, कॉनराड, जेरेमाया बेली, और हाय माय नेम इज़ कोई भी, नारुतो। तो मतलब हाय माय नेम इज़ टोनी स्टार्क, तो ऐसे कुछ भी है, ठीक है। तो उन्होंने वो फीड किया। तो अब उसको पता है कि यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं आता है, यहाँ प्रॉपर नाउन आता है, ठीक है। ऐसे मतलब जब वो डेटा फीड करते हैं तो इतने अच्छे से डेटा लेबल करके फीड करते हैं ताकि आपके मॉडल को एक छोटे बच्चे की तरह उसको समझाते हैं कि देखो ये प्रॉपर नाउन होता है, और इस सेंटेंस के बाद ये आता है, इस सेंटेंस के बाद ये आता है। तो वो सेंटेंस पढ़ता जाता है तो समझ आता है कि नेक्स्ट सेंटेंस यही होगा। अगर मैं बोलूँगी हाय माय नेम इज़ XYZ, आपको पता है XYZ मेरा प्रॉपर नाउन का नाम है, आप कहो आपका नाम है इंसान, तो मैं समझ जाऊँगी ठीक है तुम्हारा नाम इंसान ही है, दैट्स अ प्रॉपर नाउन, इट्स नॉट अ कॉमन नाउन। तो ऐसे ये प्रोबेबिलिटी निकालता है कि अच्छा, पर अगर मान लो कोई नाम है मोदी, तो उसकी प्रॉब्लम, हाय माय नेम इज़ मोदी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9। तो ऐसे ही जितने भी, तो ऐसे ही सबकी स्टैटिस्टिक्स, सबकी प्रोबेबिलिटी सबकी निकालता है, और फिर उसके बाद लैंग्वेज मॉडल हमें कोई वर्ड देता है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे जब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो, माई फेवरेट कलर इज़ डैश, अ लैंग्वेज दैट इनकोड्स इंग्लिश शुड प्रिडिक्ट ब्लू मोर ऑफन देन कार, ठीक है। ऑब्वियसली उसको पता है कि उसने इतने सेंटेंस पढ़े हैं, उसको पता है माई फेवरेट कलर इज़ रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ऐसे ही आंसर्स आते हैं। उसने अपने दिमाग में, एक तरीके से आप समझो कि उसने इतना पढ़ लिया है अपने दिमाग में, इतने सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं कि उसको पूरी दुनिया की नॉलेज है, उसके पास पूरी दुनिया का नॉलेज बेस है, और वो उससे ट्रेन हुआ है कि ऐसे बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं तो ऐसे जवाब देते हैं। तो कोरिलेशन से पढ़ रहा है वो कि यस, इस क्वेश्चन का ये आंसर होता है, काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। तो उसको ये पता है कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज में से कोई भी रेलेवेंट आंसर हो सकता है, पर गाड़ी, या माई फेवरेट कलर इज़ पैसा, या माई फेवरेट कलर इज़ इंसान, दिस डजंट मेक सेंस, ठीक है। नाउ पर इन्होंने ये करा कैसे? ये जो हम ब्लैक बॉक्स ऑफ एनालिसिस बता रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करके सोच पा रहा है कि ये शब्द नेक्स्ट होगा या वो शब्द नेक्स्ट होगा, वो कैसे कर रहा है? उसके लिए हम समझते हैं, हमें थोड़ा सा लैंग्वेज की इंट्रो में जाना पड़ता है कि लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट है उसको हम टोकन मानते हैं, ठीक है। टोकन क्या होता है? टोकन एक कैरेक्टर भी हो सकता है, टोकन एक वर्ड भी हो सकता है, टोकन एक पार्ट ऑफ वर्ड भी हो सकता है। अब जैसे एक्चुअली यही जो तीन डेफिनेशन, ये जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, ये तीन ऑप्शंस ही डिफाइन करते हैं कि कोई भी मॉडल के लिए सबसे छोटा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। कुछ LLM मॉडल्स मानते हैं कि कैरेक्टर्स क्या होता है, जैसे I इज़ अ कैरेक्टर, C इज़ अ कैरेक्टर, A इज़ अ कैरेक्टर, N इज़ अ कैरेक्टर, या फिर कि ये सबसे छोटा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होता है। कुछ मानते हैं कि वर्ड, कि कांट एक पूरा वर्ड है और ये एक कैरेक्टर है। कुछ मानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा लाइकली है, कि पार्ट ऑफ वर्ड डिपेंड इज़ अ टोकन। पार्ट ऑफ वर्ड क्या होता है? जैसे इसमें ऑप्शन देना है कंप्लीशन, तो अब मैं मान लूँ कंप्लीशन उस मॉडल के लिए दो वर्ड्स में ब्रेक होगा, कंप्लीट एंड टीशन, ये, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल ब्रेक, एंड वो इसको यूज़ ऐसे करेगा कि कंप्लीट कर लिया और
एशियन मतलब इट्स स्टिल गोइंग ऑन इन कंप्लीशन, मतलब उससे ये क्या कर रहा है, ये टेंस समझ रहा है ताकि जब आपको रिस्पॉन्ड करेगा तो ये टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा प्रोबेबिलिटी डिसाइड करने में। जैसे अगर हम थोड़ा इसी पे ध्यान दें, ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल GPT-4 जो है बेक्स द फ्रेज आई कांट वेट टू बिल्ड AI एप्लीकेशंस इनटू 9 टोकन्स। तो ये 9 टोकन्स में कैसे कर रहा है, आई कैन अलग है, टी अलग है, वेट टू बिल्ड सम AI एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब ये सेम हो गया क्योंकि इसमें TIONS ये अलग नहीं ले रहा है क्योंकि एप्लीकेशन एक पूरा का पूरा शब्द है, उसमें TION ऐड नहीं हुआ है। तो यही बात है, उसको समझ कैसे आ रही है, जो उसमें डेटा फीड किया था मुझसे उसको समझ आ रही है कि अच्छा ये एक शब्द है और ये एक शब्द की रन एक शब्द है और इंग मीन्स कि अभी भी दौड़ रहा है। तो अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास खाली जगह भी नहीं है, I am running and I am dash। अब वो कैसे पता करेगा कि मैं क्या हूँ? अब इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे आप कैसे पता करोगे कि ये डैश क्या है। अब देखो वो कैसे तोड़ेगा, पहले देखते हैं। आई एक है, एम एक है, रन एक है, इंग है। इसका मतलब इंग अलग करने से उसको क्या पता चल रहा है, उसको ये पता चल रहा है कि मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ, दैट मीन्स मैं अभी भी दौड़ने में ही हूँ, मेरी ख़त्म नहीं हो गया रहा, ठीक है। ये इसको हेल्प करेगा फाइनल आंसर ढूंढने में, एंड आई एम, ठीक है। अब यहाँ बाद में ऑप्शंस क्या है, मान लो एक है विनिंग जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, उसमें टॉप 3 इसके पास निकल जाएंगे, आई एम रनिंग एंड आई एम विनिंग, आई एम रनिंग एंड आई एम टायर्ड एंड आई एम रनिंग एंड आई एम स्लीपिंग, ठीक है। अब इसको पता है कि डेफिनेटली भाई कोई इंसान दौड़ते दौड़ते तो स्लीप नहीं कर सकता, दौड़ते दौड़ते तो कोई इंसान स्लीप नहीं कर सकता, तो ये तो छूट गया, ये वर्ड की वैल्यू कम कर देता है। फिर ये देखिएगा कि आई एम टायर्ड मेक सेंस क्योंकि तुम दौड़ते दौड़ते थक रहे हो। फिर ये देखिएगा कि आई एम विनिंग, आई एम रनिंग एंड आई एम विनिंग, ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो बताओ कि दोनों में से वन कैसे हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, दैट्स द होल पॉइंट, कोई भी सही हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक टोकन प्रिडिक्ट कर रहा है कि कौन सा सही है। और वैसे मोस्ट प्रॉब्ली टायर्ड इज करेक्ट बिकॉज कोई दौड़ते दौड़ते थक जा रहा है इज मोर लाइकली देन कोई उसको पता है दौड़ते दौड़ते मैं जीत ही रही हूँ। तो दैट्स जस्ट अ थॉट। तो अब हम अगर नोट डिस्कस करें, वैसे ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मतलब ये जो नोट है ये मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी कि हम टोकन क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्ड क्यों नहीं यूज़ करते। तो बाकी यू कैन रीड द नोट्स एंड दे आर अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं दे आर 2 टाइप्स, मास्क्ड एंड ऑटो रिग्रेसिव। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है हम ये समझते हैं कि जो ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो पहले हम समझते हैं मास्क्ड, ठीक है। मास्क्ड लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं ना वो मिसिंग वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं, दे आर वेरी मच यूज्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये मिसिंग टोकन प्रिडिक्ट करते हैं यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर। एंड जैसे अगर हम कहें माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, तो माई फेवरेट डैश इज़ ब्लू, तो वो डैश प्रिडिक्ट कर लेगा कि ब्लू है इसलिए कलर होगा, ठीक है। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है बर्ट मॉडल, जो कि जब 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि वो सच में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत यूज़फुल है। पर हम आजकल बर्ट मास्क मॉडल्स को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये जनरेटिव टास्क्स इतने अच्छे से नहीं करते हैं, दे कांट कीप जनरेटिंग अ टोकन। आज की डेट में जो आपका चैट GPT है, चैट GPT इज़ अ ग्लोरिफाइड वर्ड प्रिडिक्टर, ठीक है। वो लिटरली नेक्स्ट वर्ड बस प्रिडिक्ट करता रहता है। और सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसे टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं मास्क लैंग्वेज मॉडल। आई एम सो सॉरी शोर के लिए, गणपति गणेश चतुर्थी चल रही है तो बहुत शोर रखा है जाएगा, पर ठीक है, गणपति बाप्पा मौर्य। अब ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो दे आर ट्रेन्ड टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस। तो वो सिर्फ एक वन डायरेक्शनल सीक्वेंस में ही काम कर सकते हैं, ये बाई डायरेक्शनल काम कर रहे थे ना,
वो वन डायरेक्शन सीक्वेंस में ही काम कर सकते हैं। एंड जैसे माई फेवरेट कलर इज डैश, तो वो प्रिडिक्ट करेगा, यूनिवर्स वो प्रिडिक्ट करता ही रहेगा। तो इसीलिए हमको कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव एल्गोरिथम्स। और टुडे दे आर द मोस्ट पॉपुलर चॉइस इन एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि और इसीलिए मतलब आप समझो कि हम इसको जनरेटिव एआई भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट कैन जनरेट ओपन एंडेड एंडलेस आउटपुट्स इट कैन जनरेट। मतलब वाई डज द चिकन क्रॉस द रोड, उसके बाद भी आगे रोड तो इसने प्रेडिक्ट कर ली, ठीक है, रोड इसने प्रेडिक्ट कर ली, उसके आगे भी ये प्रेडिक्ट कर सकता है। दैट इज द ब्यूटी। अब देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्पेशल अबाउट लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, ऐसा क्या था जो लैंग्वेज मॉडल्स की वजह से पूरा चैट जीपीटी मूवमेंट हुआ। तो 2022 में जो चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस किया था सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई ने, तो वो मतलब पूरी दुनिया एकदम शॉक हुई थी क्योंकि ऐसा चैटबॉट पहले आया ही नहीं था। तो फ़र्क क्या था? लैंग्वेज मॉडल्स। पर लैंग्वेज मॉडल्स में ऐसा क्या था जो एकदम ही वर्ल्ड चेंज कर दिया उन्होंने? तो इसका आंसर है सेल्फ सुपरविजन। अब सेल्फ सुपरविजन होता क्या है, उसके लिए पहले हम सुपरविजन समझते हैं। ठीक है, सुपरविजन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एमएल मॉडल्स यूजिंग लेबल डेटा व्हिच कैन बी एक्सपेंसिव एंड स्लो टू ऑब्टेन। ऐसा होता है कि जब मैं आपको कह रही थी बिगनिंग में कि मशीन लर्निंग पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज छोटे छोटे एमएल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर बिल्डिंग एआई सिस्टम्स। तो एमएल में एक कॉन्सेप्ट है सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये शायद कुछ लोगों को पता हो। और सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लेबल्ड डेटा लेते हैं। तो अब जैसे मान लो सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक एग्जांपल है कैट्स एंड डॉग्स। ये इंडिया में सब लोग इतना हॉर्न क्यों हो जाते हैं? लेबल्ड जैसे कैट्स एंड डॉग्स। अब मैं क्या करूँगी, मैंने अपना एक मॉडल बनाया इसमें मैं 100 फोटो दूंगी इस मॉडल को कैट्स की, और मैं मॉडल को बताऊंगी कि ये 100 की 100 फोटो कैट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको 100 फोटो दूंगी डॉग्स की, और मैं मॉडल को बताऊंगी कि ये 100 की 100 फोटो डॉग्स हैं। फिर पहले मैं इसी में से कोई रैंडम फोटो अपने मॉडल को दे दूंगी और कहूँगी बताइए क्या है, तो वो कहेगा ये कैट है। और ऐसे ही मैं उसको डॉग दे दूँगी तो वो बता देगा सही ये डॉग है। ठीक है, क्योंकि ये तो सारे डेटा उसने देखा हुआ है। फिर मैं कोई नई कैट की फ़ोटो लाऊंगी एंड डिपेंडिंग ऑन माई मॉडल्स एक्यूरेसी, यूजुअली मॉडल्स हैव अराउंड 90% एक्यूरेसी, तो वो बता देगा कि ये कैट ही है या ये डॉग ही है। ठीक है, इसे कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? जब हम बता देते हैं अपने मॉडल को कि क्या है, कि ये कैट है और ये डॉग है। That is called as supervised learning. But the main problem with supervised learning is that it is very expensive. क्योंकि 100 कैट की फ़ोटो 100 डॉग्स की फ़ोटो तुम ऐसे समझो कि ऑनलाइन कुछ अवेलेबल नहीं है। तुम्हें कोई बंदा रखना पड़ेगा जो कैट्स गूगल इमेजेस पे सर्च करेगा, 100 फोटोज़ डाउनलोड करेगा, बंदा स्क्रैपर व्हाटएवर। तुम्हें वैसे एक बंदा रखना पड़ेगा जो 100 डॉग्स की फ़ोटो रखेगा, उसको डाउनलोड करेगा। अब जब इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा पूरी दुनिया की नॉलेज रखने वाला हमें एक चैटबॉट चाहिए, जब पूरी दुनिया की नॉलेज रखने वाले इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करे, तो वो डेटा उठाना, लेबल करना तो मतलब इम्पॉसिबल ही है। इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। तो फिर क्या कर सकते हैं? तब हमारे काम आता है सुपरविजन, सेल्फ सुपरविजन। सेल्फ सुपरविजन कैसे ओवरकम करता है डेटा लेबलिंग बॉटलनेक को? To create large data sets to learn from effectively, models to learn from. So it helps overcome the data labeling bottleneck to create large data sets for models to learn from, effectively allowing the models to scale up. Now language models can be trained using self-supervision while other models require supervision. ठीक है, अब इसमें सेल्फ सुपरविजन क्या होता है कि जब मॉडल को खुद ही ब खुद ये लेबलिंग वाला इशू, मॉडल खुद ब खुद ये लेबलिंग वाला इशू सॉल्व कर लेता है, देन इट इज़ कॉल्ड सेल्फ। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस पूरा इसके बारे में, बट मेन हम कहना चाहते हैं कि जब खुद ब खुद ये सुपरविजन वाला लेबल्ड डेटा का जो बॉटलनेक है, ये सच में एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था
जो ऑटोमेटिकली इन्होंने लैंग्वेज मॉडल्स ने सॉल्व करा। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो सेल्फ सुपरविजन जो होता है उसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रिक्वायरिंग एक्सप्लिसिट लेबल्स द मॉडल्स कैन इन्फर लेबल्स फ्रॉम द इनपुट डेटा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको डेटा आया है वो मॉडल में हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो सेल्फ सुपरवाइज कर लेता है। सेल्फ सुपरवाइज मतलब वो खुद ही लेबल असाइन करता रहता है। अब वो लेबल गलत भी हो सकता है, वो लेबल सही भी हो सकता है। वहाँ पे चाहिए होती है ट्रेनिंग, ह्यूमन इन द लूप की वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है कि ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी लॉगिंग, उसकी सब चीज़ें। तो language modeling is self-supervised because each input sequence provides both the labels, the tokens to be predicted and the context the model can use to predict the tokens। ठीक है, अब ऐसा है कि अब कोई सेंटेंस है, आई लव स्ट्रीट फूड, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। जैसे ही मैं ये सेंटेंस देती हूँ ना, ये जो हमारा प्यारा सा टोकन प्रिडिक्टर है कि इसको ही प्रिडिक्ट करने लगता है कि जब आई आता है, पहले तो ये होता है BOS मतलब बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, और EOS मतलब एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो पहला इनपुट कॉन्टेक्स्ट है बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। बिगनिंग ऑफ सेंटेंस इसने देखा कि आई है, बिगनिंग ऑफ सेंटेंस के बाद आई आता है, तो इसने देखा कि अगर मैंने 100 एग्जाम्पल दिए हैं, 100 में से 50 एग्जाम्पल में बिगनिंग आई से हुई है, 50 एग्जाम्पल में बिगनिंग द से हुई है। तो इसने ये समझा कि बिगनिंग ऑफ सेंटेंस के बाद यूजुअली आई आता है या द आता है। प्रोबेबिलिटी उनकी 0.6 से 0.7 है। फिर इसने देखा आई के बाद आया लव। ठीक है, आउटपुट नेक्स्ट टोकन का आया लव। फिर इसने देखा कि लव के बाद आया स्ट्रीट, इसने नेक्स्ट टोकन दिया तो स्ट्रीट आ गया। फिर इसने कहा कि आई लव स्ट्रीट, तो आई लव स्ट्रीट के बाद क्या अच्छा लग रहा है, फूड अच्छा लग रहा है, तो ऐसे फूड के बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सेल्फ सुपरविजन कैसे आता है कि जो भी इसमें इनपुट टेक्स्ट है वो उस इनपुट टेक्स्ट के ऊपर ही अपने आप को ट्रेन करता है कि इस इनपुट के बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है तो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है तो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, मतलब ऐसे वो उसके अंदर एक पैटर्न्स, उसके अंदर ये पैटर्न्स को ढूंढता है। ठीक है, और आई लव स्ट्रीट फूड ये सिर्फ ट्रेनिंग एग्जाम्पल उसके लिए दे दिया उसने। ठीक है, नाउ LLM जो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। सो क्योंकि लार्ज क्या होता है, मतलब हम कहते हैं लैंग्वेज मॉडल, तो हम मान लिया हम क्या होता है, लार्ज क्या होता है, लार्ज क्या किस कौन सी, जो मॉडल आज लार्ज है वो कल मतलब 1-2 साल बाद वो लार्ज नहीं रहेगा। मॉडल का जो साइज होता है दैट इज़ टिपिकली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, वो एक वेरिएबल होता है दैट इज़ अपडेटेड थ्रू द ट्रेनिंग प्रोसेस। कितने वेट्स है, कितने 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 वेरिएबल्स है उस मॉडल के अंदर जो डेटा इनपुट ले सकते हैं, उसके बेसिस पे। तो हम कहते हैं जैसे 120 बिलियन या 20 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल है, तो ये ज़्यादा डेटा ले रहा है या ये तो ये ज़्यादा डेटा ले रहा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा मॉडल है, एक बहुत बड़ा मॉडल है, तो यानी कि चांसेस हैं कि ये बेटर परफॉर्म करेगा। पर रिसेंट स्टडीज़ में पता चला है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि बिगर मॉडल्स मीन्स दे विल हैव बेटर प्रोसेसिंग, you have to be efficient with processing. Sometimes too much data can also get confusing. So why do large models need more data? ऐसा है, लार्ज मॉडल्स के अंदर है एक कैपेसिटी टू लर्न एंड देयरफॉर दे वुड नीड मोर ट्रेनिंग डेटा टू मैक्सिमाइज देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, तुम स्मॉल डेटा सेट पे भी उनको ट्रेन कर सकते हो, बट इट विल बी अ वेस्ट ऑफ कॉम्प्यूट, क्योंकि उनको उतने डेटा सेट पे कुछ समझ ही नहीं आएगा। मतलब ऐसा है कि जैसे तुम हो, ठीक है, अब मैं तुम्हें कहूँ क्योंकि बिगर डेटा सेट्स क्यों चाहिए होते हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस जगह को मैक्सिमाइज करना चाहूँगी। मैं तुम्हें कहूँ कि तुम पैटर्न ढूंढो 1 1 1 सॉरी कि मेरा एक पैटर्न, ठीक है, मेरा एक पैटर्न का एग्जांपल है 1 3 5 7 डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें एक पैटर्न बताओ, तो तुम्हारे पास इसके लिए 4 एग्जाम्पल्स हैं, तुम्हें समझ आ रहा है कि ऑड नंबर जाने से 9 होगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहूँ 1 और 3 है, अब पैटर्न बताओ, तुम्हें क्या पता कि मैं 2 2 ही ऐड करी हूँ। ऑब्वियसली कॉमन पैटर्न इज 5, पर कुछ और भी तो सोचा होगा मैंने, कुछ भी हो सकता है, क्या पता मैं सिर्फ
3 के मल्टीपल्स ही 4 हैं, डिविडेड जो भी होता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्या पता इस वाले में मैं सिर्फ प्राइम नंबर्स कह रही थी तो मैंने लिगेचर 2 मिस कर दिया, व्हाटएवर। मतलब माय पॉइंट इज़ कि अगर अच्छा एक और लेते हैं, मैं कहूँ 0 2 3 4, अब बताओ इसमें क्या है, बताओ इसमें क्या नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 1 मिसिंग है इसमें से, तो मैं कैसे पता 5 आएगा। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है इसमें कोई पैटर्न, अनटिल और अनलेस मेरे पास इसमें बहुत सारे नंबरों में शायद कोई पैटर्न बता पाऊँ। इसीलिए स्मॉल डेटा सेट्स पे ट्रेन करना मुश्किल होता है। अगर मैं तुम्हें कुछ 5 गाड़ियों की फ़ोटो दिखाऊँ, अगर मैं तुम्हें जैसे मुझे गाड़ियाँ पसंद हैं, अगर मैं तुम्हें 2 एवेंटाडोर की फ़ोटो दिखाऊँ और 2 हरकन की फ़ोटो दिखाऊँ और फिर मैं तुम्हें कोई रैंडम फ़ोटो दिखाऊँ, बताऊँ ये कौन सी गाड़ी है या ये कौन सी गाड़ी ज़्यादा मिलती है, तुम बता पाओगे? तुम नहीं बता पाओगे, मतलब अनलेस तुम भी मेरी तरह कार नर्ड हो तो तुम नहीं बता पाओगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लार्जर डेटा सेट्स हेल्प्स अस टू फाइंड पैटर्न्स वेरी इजीली। यहीं पे अगर मैं तुम्हें 50 एवेंटाडोर की फ़ोटो याद करा दूँ, 50 हरकन की फ़ोटो याद करा दूँ, तो तुम सड़क पर देख के बता दोगे यार ये थोड़ी एवेंटाडोर जैसी दिखती है, थोड़ी हरकन जैसी दिखती है। या अगर मैं 50 नंबर लेती इस सीरीज़ में तो तुम समझ पाते कि 51st नंबर क्या है, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता। ठीक है, अब हम आते हैं कि फाउंडेशन मॉडल्स क्या होते हैं। फाउंडेशन मॉडल्स हमने अगर आपको याद हो सबसे पहली स्लाइड में देखे थे, पर वो होता क्या है हमें अभी भी नहीं पता। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? दे आर इनक्रेडिबल एट अ लॉट ऑफ टास्क्स बट दे कैन ओनली वर्क विद टेक्स्ट बिकॉज दे आर लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, बट हम ह्यूमन हैं, हमें फ़ोटो भी चाहिए, हमें ऑडियो भी चाहिए, हमें वीडियो भी चाहिए, हमें 3D भी चाहिए, हमें सब चाहिए, हम भूखे हैं। तो वी परसीव द वर्ल्ड नॉट जस्ट वाया लैंग्वेज बट ऑल्सो थ्रू ऑल ऑफ दिस। टच भी चाहिए, टच कहाँ से मिलेगा आपको? सो बीइंग एबल टू प्रोसेस डेटा बियॉन्ड टेक्स्ट। अब हमारा क्या काम है? वी हैव टू प्रोसेस डेटा बियॉन्ड टेक्स्ट एंड दैट इज़ एसेंशियल फॉर AI। तो इसीलिए लैंग्वेज मॉडल्स को हम एक्सटेंड करते हैं इनटू मोर डेटा मोडालिटीज। इसको कहते हैं डेटा मोडालिटीज। जब विजन, ऑडियो, टेक्स्ट ये अभी की करंट डेटा मोडालिटीज़ है, ठीक है। और जैसे GPT-4 भी है, क्लॉड है, इनमें आप इमेज डालो तो ये इमेज भी समझ लेता है, ये इमेज में अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि इनमें मल्टीपल डेटा मोडालिटी आ गई है। कुछ है जिनमें 3D एसेट्स भी आते हैं, जो मेडिकल मॉडल्स होते हैं उनमें प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी आने लग गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ अ डेटा मोडालिटी दैट दे कैन अंडरस्टैंड। तो इनकॉर्पोरेटिंग डेटा मोडालिटीज इनटू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मेक्स देम इवन मोर पावरफुल। तो अब मेनी पीपल स्टिल कॉल जेमिनी एंड GPT-4 LLMs बट दे आर एक्चुअली फाउंडेशन मॉडल्स। इनको फाउंडेशन मॉडल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि द वर्ड फाउंडेशन सिग्निफाइज बोथ द इम्पोर्टेंस this signifies the importance of the model in AI applications and the fact that they can be built upon different needs। इसीलिए हम इन्हें फाउंडेशन मॉडल्स कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस भी हमें दिखा रहा है, फाउंडेशन मॉडल है ये, सारी मोडालिटीज कवर कर पा रहा है, और द फैक्ट दैट दे कैन बी बिल्ट अपॉन डिफरेंट नीड्स ऑल्सो। A model that can work with more than one data modality is called a multimodal model, जैसे मैंने कहा, एंड इनको हम लार्ज मल्टीमोडल मॉडल्स ही कहते हैं। आजकल ChatGPT वगैरह जितने भी है वो सब लार्ज मल्टीमोडल मॉडल्स ही हैं। इफ अ लैंग्वेज मॉडल जनरेट्स द नेक्स्ट टोकन condition on text only, then a multimodal generates the next token condition on text, image, video और जो भी उसमें modality है। ठीक है, तो अगर मैं this is a visual token डाल रही हूँ, मल्टी मॉडल को समझ आ जाना चाहिए, वो दोनों के कोरिलेट करके कॉन्टेक्स्ट समझता है। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आर यू नीडेड और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लाइक यू आर गोइंग टू गेट एक्सटिंक्ट? एंड मी आंसर। सो द आंसर फॉर दिस इज you are needed. So trust me. Why I'm saying that is in 2023, I know it seems a while ago that 2023 people didn't know the capabilities of LLMs in AI, but in 2023 Microsoft
proposed a framework for gradually increasing AI automation in products, and not the word gradually. Okay, they knew how powerful, like, as someone who's building in the space, you get a fair idea of how far the technology can go, right? And then they realized that there's something called the crawl, walk, run framework that would work the best for all the AI automation projects. What it says that crawl means human involvement is mandatory. Walk means AI can directly interact with internal employees. And run means increased automation potentially includes direct AI interactions with external users. Okay, so what this basically means is that हम कुछ भी कर लें, crawl करना मतलब whenever you are building anything, even you are building automation, जैसे होता है कि crawl walk run क्या होता है कि when a child is learning to walk, तो पहले उसको crawl करना पड़ता है, उसके बाद वो walk करना सीखता है और उसके बाद ही वो run करता है, ठीक है? तो ह्यूमन इंटरेक्शन इज मैंडेटरी बिकॉज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बिना एआई कुछ सीख नहीं सकता. वॉक मतलब कि जब भी एआई हमारा वॉक कर रहा है वो डायरेक्टली ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरनल एम्प्लॉयज से उनके इंटरेक्ट कर रहा है. तो करंटली अभी हम कह सकते हैं कि वॉकिंग सबसे ज़्यादा वॉकिंग स्टेज पे है, जब हम एआई इंटरनल जो जितने भी कंपनी के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो सब एआई ही यूज़ कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग एनी ऑफ द एप्लीकेशंस. जब हम रन की बात करें तो जब ऑटोमेशन बढ़ जाती है इंक्लूडिंग डायरेक्ट एआई इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल यूजर्स, वो भी लेकिन वॉक के बिना नहीं हो सकती. तो मतलब दिस इज़ अ पाथवे कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज़ मैंडेटरी. मतलब कुछ भी अगर आपको कोई भी रन करने के लिए, अगर आपको कोई भी एआई ऑटोमेशन रन करने के लिए आपको पहले ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट डालना पड़ेगा, ह्यूमन को उसके साथ बिठाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऑटोमेशन बनेगी. वो ऑटोमेशन उसके बाद इंडिपेंडेंटली एक बार को वर्क कर सकती है, तो फिर द साइकिल रिपीट फॉर द नेक्स्ट ऑटोमेशन यू वांट टू मेक. सो ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाए. That is not possible. You always need to build newer automations. You always need to maintain newer automations. So the role of humans can change over time as the quality. Okay, the role of humans can change as the quality. So for example, in the beginning, you might use generated suggestions for human agents. Now, if the acceptance rate by human agent is high, so 95% of AI suggested responses to simple requests are used by human agents verbatim, and that's a problem. And you can let customers interact with AI directly. ठीक है, अगर मतलब till the time 95% of the code doesn't fix up, तो तब तक हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते. ठीक है, that is basic. The basic iteration of will there be a need of humans is just this only, that for building any automation हमें पहले क्रॉल करना पड़ता है, पहले ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी है, उसके बाद वॉक होती है, उसके बाद रन होता है. ठीक है, अब you might use AI generated suggestions for human agents. On 95% of AI suggested response to simple requests are used by human agents. ठीक है, तो फिर हम ये रन कब होगा कि जब 95% AI generated response acceptable होगा, ह्यूमन एजेंट कहेगा कि हाँ ये ठीक काम कर रहा है, उसके बाद ही वो एक्सटर्नल पे जाएगा. उस 95% तक लाने के लिए AI को बहुत मेहनत लगती है यार, सच मतलब मेरी बात मानो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट AI वर्सेस ML इंजीनियरिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमें पता होना चाहिए. अभी तक हमने सबसे पहले आई थिंक ऐसा ही कुछ डिस्कस किया था जब हम कह रहे थे AI इंजीनियरिंग वर्सेस फुल स्टैक इंजीनियरिंग. अब हम इसी को थोड़ी डेप्थ में करते हैं, सो दैट यू नो इन द फ्यूचर तुम कोई कुछ भी कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम पढ़ क्या रहे हो. ठीक है, तो on a high level, building applications using foundation models today differs from building traditional in 3 ways. जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि AI एप्लीकेशंस जो है ये आप यूज़ कर रहे हो फाउंडेशन मॉडल्स को डायरेक्टली कॉल करके, और इसीलिए दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ML इंजीनियरिंग. पहला है विदाउट फाउंडेशन मॉडल्स यू हैव टू ट्रेन योर ओन मॉडल्स. ठीक है, तो पहले हमें खुद अपना ट्रेन करना पड़ता था. विद AI इंजीनियरिंग यू यूज़ अ मॉडल दैट इज ट्रेन बाय समवन एल्स, हम बस API कॉल कर रहे हैं. ठीक है, द फोकस इज लेस ऑन मॉडलिंग एंड मोर ऑन द मॉडल अडेप्टेशन, कि हमें मॉडल कैसे यूज़ करना है. फिर उसकी AI इंजीनियरिंग वर्क्स विद मॉडल्स दैट आर बिगर, कंज्यूम मोर कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड हाई लेटेंसी देन ट्रेडिशनल ML इंजीनियरिंग. ML इंजीनियरिंग में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, मतलब लेजिट मतलब जब मैं कह रही हूँ बहुत सारी, तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी.
अब हमारे को कंप्यूट के बारे में इतना नहीं पता। अगर हम API कॉल कर रहे हैं तो हमें कंप्यूट के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है, लेटेंसी के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है, हमें कैसे सोचना पड़ता है कॉस्ट। पर ML में कॉस्ट की थोड़ा इतना इशू नहीं होता था, कॉस्ट यूज टू बी वेरी लेस क्योंकि हम सब खुद ही कर रहे थे। This means that there is more pressure for efficient training and inference. So a corollary for compute intensive models is that many companies need more GPUs to work with bigger. अब देखो, अब इसका ऑपोजिशन हम देख रहे हैं कि अब कंपनीज को ज़्यादा बड़े GPU रखने पड़ रहे हैं इन्फ्रेंस को ऑप्टिमाइजेशन। अब इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन होती है कि जब भी तुमने कोई मॉडल ट्रेन कर दिया है, ठीक है, अब अच्छा जैसे मैं तुम्हें बताया था कि कैट और डॉग का क्लासिफायर मॉडल था, वो हमने ट्रेन कर दिया कि कब कैट 100 इमेज कैट की दे दी कि कैट ही होती है, 100 इमेज डॉग की दे दी। अब तुमने जब उसको कोई नई इमेज दी है तो जो अपनी ट्रेंड लर्निंग से वो जो आउटपुट देता है उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस इज बेसिकली वो आउटपुट जो भी यूजिंग द ट्रेंड नॉलेज ऑन न्यू डेटा दैट इट हैज़ नॉट बीन ट्रेन्ड अपॉन, दैट इज इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन मतलब कितनी जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे ChatGPT है, तुम उसको कोई क्वेरी देते हो तो उसके थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स आता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आता है, मतलब थोड़ा इमीडिएट आने लग गया अब तो वैसे, पर पहले अगर तुम याद हो तो दैट इज़ लेटेंसी की। उन्होंने लेटेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, मतलब कि इमीडिएट वो रिस्पॉन्स कर देता है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, दैट इज़ इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है दैट इज़ इन्फ्रेंस, क्योंकि उसको नहीं पता था, उसको ट्रेन नहीं है तुम्हारे डेटा पे कि तुम क्या पूछोगे, कि मतलब ऐसे छत्तीसगढ़ का चंदन कुमार क्या पूछ रहा है उसको नहीं पता है। तो इसीलिए उसने क्या किया कि मतलब दैट इज़ जो भी उसका ट्रेन नॉलेज थी वो उसने तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर लगाई, दैट इज़ इन्फ्रेंस। ठीक है, और हमें इसको ऑप्टिमाइज करना होता है कि पहली बात तो आंसर तुम्हारे क्वेरी से मैच हो, ठीक है। दूसरी बात मोर इम्पॉर्टेंटली इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन में सबसे ज़्यादा काम यही होता है कि हमें लेटेंसी कम करनी होती है। जो लैग होता है क्वेश्चन पूछने के बाद और आंसर आने से पहले, वो जो बीच का टाइम फ्रेम है जिसमें तुम्हें वेट करना पड़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे तुम अभी इमेज जनरेशन करवाते हो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो उसमें इन्फ्रेंस है, उसमें लेटेंसी लो है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा कंप्यूट लग रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। पर अब हाँ, तो इसकी कॉरली वही जो मैंने आपको बताया कि ML हमारे लिए कॉस्ट फ्रेंडली था। कंपनीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि अभी अब जो नए AI मॉडल्स हैं उसमें मुझे कंप्यूट के बारे में नहीं सोचना, मुझे किसी बारे में नहीं सोचना, बट जो कंपनी है उसको तो सोचना ही पड़ेगा, उसको बड़े GPUs चाहिए, बिगर कंप्यूटर क्लस्टर्स चाहिए। दिस मीन्स मोर नीड फॉर engineers who know how to work with GPUs and clusters. Now AI engineering is working with models that can produce open-ended outputs. Open-ended outputs give models the flexibility to use for more tasks, but they are harder to evaluate. अब जब open-ended मतलब हमने उसका एक टास्क फिक्स नहीं करा, जैसे ये क्लासीफायर था हमारा, इस क्लासीफायर का टास्क फिक्स्ड है कि ये सिर्फ क्लासिफिकेशन ही कर सकता है, इसमें कैट और डॉग की फ़ोटो ही बता सकता है, मतलब मैं पैरट की फ़ोटो डाल दूँगी इसको नहीं पता, मैं इसमें फ़ोटो के अलावा कुछ और लिख दूँगी, वो ऑप्शन ही नहीं है कि मैं उससे पूछूँ व्हाट इज़ अ कैट व्हाट इज़ अ डॉग, वो कुछ नहीं कर सकता। बट ChatGPT या फिर जितने भी AI मॉडल्स हैं आपके, वो सब आउटपुट एग्नोस्टिक है, वो कुछ भी आउटपुट दे सकते हैं, ओपन एंडेड आउटपुट्स दे सकते हैं। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी हम एवेल्यूएट नहीं कर सकते, ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसका बेस्ट पार्ट है। In short, AI engineering differs from ML engineering, that is less about model development and it's more about adapting and evaluating the model. मुश्किल काम क्या है इसके अंदर? अडेप्ट करना मॉडल को, इंटीग्रेट करना आपके किसी AI सिस्टम में, और फिर उसको इवेल्युएट करना कि ये सेफ रिस्पॉन्स दे रहा है, सही रिस्पॉन्स दे रहा है, कितने हद तक सही रिस्पॉन्स दे रहा है, हालिसिनेट कर रहा है नहीं कर रहा है। So in short, model adaptation techniques can be divided into two categories depending on whether they are requiring updating the model weights or not. तो अब दो टाइप की हम बात करते हैं। मॉडल अडेप्टेशन टेक्निक्स दो टाइप की होती हैं डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू आर अपडेटिंग द मॉडल वेट्स और नॉट। अगर आप मॉडल वेट्स अपडेट कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। अगर आप मॉडल अडेप्टेशन में वेट्स को नहीं छू रहे हो तो वो है जो आप सब लोग करते हो, प्रॉम्प्ट बेस्ड इंजीनियरिंग, ठीक है। और मुझे पता है कि सब लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं, मैं भी उड़ाती हूँ, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल। मतलब देयर हैव बीन स्टडीज, इनफैक्ट आई थिंक GPT-4 के टाइम पे ही हुआ था, जब आई थिंक GPT-4 की परफॉर्मेंस 83% से 90% तक पहुँच गई थी विद एफिशिएंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स। इट्स नॉट 100% राइट, मे बी आई एड
लिंक टू द पेपर जो ये रेलिवेंट है इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, बट लेट्स सी। तो प्रॉम्प्ट बेस्ड टेक्निक्स जो होती हैं दे इंक्लूड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दे अडेप्ट अ मॉडल विदाउट अपडेटिंग द मॉडल वेट्स, है ना। हम बस मॉडल को बता देते हैं हम क्या चाहते हैं, पर हम उसके वेट्स को नहीं छूते हैं। मॉडल के वेट्स क्या होते हैं, जब भी जैसे जैसे एक न्यूरल नेटवर्क, अगर आपको पता, मतलब जब भी हम मॉडल को मान लो ये हमारा मॉडल है, पहले इनपुट इस ब्लॉक में जाता है, इस ब्लॉक में कुछ कंप्यूट होता है, फिर इस ब्लॉक में कुछ कंप्यूट होता है, फिर इस ब्लॉक में कुछ कंप्यूट होता है, और उसके बाद हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। तो अब हर इसका वेट होता है, मान लो ये कर रहा है प्लस, ये कर रहा है माइनस, ये कर रहा है मल्टीप्लाई, है ना। अब क्या होता है कि राइट रिस्पॉन्स लेने के लिए हमें थोड़ा सा वेटेज असाइन करनी पड़ती है, कि हमें ज़्यादा प्लस करना है, थोड़ा कम माइनस करना है। इट्स लाइक खाना बना रहे हो तुम, ठीक है। खाना बनाते टाइम अब तुम्हें मसाले डालने हैं, तो हर मसाले की वेटेज अलग है। नमक तुम कितना डाल रहे हो डज नॉट, मतलब नमक मिर्ची का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ना। तो वैसे ही जब आप एआई मॉडल को ट्रेन करते हो, तो उसमें मान लो कि हर एक जो कंपोनेंट है, जितने भी मैंने आपको पहले बताया था कि एमएल मॉडल भी बनाते टाइम हम लेयर्स यूज़ करते हैं। अब मुझे ये जो था कि एमएल मॉडल बनाते टाइम हम लेयर्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही सेम एआई जो एलएलएम्स होते हैं उनमें भी लेयर्स यूज़ होती हो। तो वो जो है, अब हर लेयर की वेटेज अलग होती है। किसी लेयर में हम कुछ कंप्यूट कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी लेयर में हम कुछ कंप्यूट कर रहे हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, वो उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हेलुसिनेशन बढ़ जाएगी। तो ऐसा ना एक मतलब मोल भाव करके फिर समझ आता है, जैसे खाना बनाते टाइम अगेन मोल भाव करके समझ आता है कि हल्दी इतनी होनी चाहिए, चीनी इतनी नमक इतना होना चाहिए, मिर्ची इतनी होनी चाहिए। तो क्योंकि आप कुछ भी ज़्यादा कर दोगे तो आपका आउटपुट परफेक्ट नहीं आ रहा है। जो परफेक्ट आउटपुट ला रहा है वो वेटेज ऑफ एवरी मसाला, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉडल वेट्स। जब तक हम वो वेटेज चेंज नहीं कर रहे हैं, हम मसालों की क्वांटिटी सेम रख रहे हैं, हम बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब सब्जियाँ बदल रहे हैं, तो हम मॉडल अडाप्ट कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट टाइप का खाना बना रहे हैं, पर सारे खानों का टेस्ट सेम होगा। तो दैट इज़ द सेम थिंग दैट इज़ हैपनिंग हियर, ठीक है। यहाँ पे भी मॉडल की जो अंडर वैल्यूज़ है, इनर वैल्यूज़ है मॉडल की, वो सेम रह रही है। अलग अलग हम बस उसको प्रॉम्प्ट दे जा रहे हैं, तो वो अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहा है बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट, पर उसकी जो इनर कोर वैल्यूज़ हैं वो सेम ही हैं, ठीक है। बाई गिविंग इट, सो हम इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कॉन्टेक्स्ट देते हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द मॉडल। हम मॉडल बिल्कुल नहीं बदल रहे, स्वाद सेम है। हाउएवर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग माइट नॉट बी इनफ फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। फिर हम आते हैं फाइन ट्यूनिंग के ऊपर। फाइन ट्यूनिंग जो है, फाइन ट्यूनिंग थोड़ी मुश्किल होती है। इट रिक्वायर्स अपडेटिंग द मॉडल वेट्स। यहाँ पे हम थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। यहाँ फिर से एक तरीके से दिस इज़ लाइक अ सेकेंडरी ट्रेनिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फिर से मॉडल के सही वेट्स ढूंढने पड़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले एग्जाम्पल दिया था कि मैंने एक फैशन एलएलएम ऐप खोली है। पहले तो मैं सिर्फ ChatGPT को प्रॉम्प्ट इंजीनियर कर देती हूँ कि जो भी बंदा पूछेगा उसके रिलेटेड में तो फैशन एडवाइस दे दियो, पिंटरेस्ट एस्थेटिक वाली, ठीक है। अब मेरी स्टार्टअप बहुत चल गई। अब मैंने सोचा कि अभी ChatGPT की नॉलेज के बेसिस पे एडवाइस दे रहा है। अगर मैं ChatGPT के मॉडल वेट्स बदल दूँ ताकि वो परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे डेटा के ऊपर, मतलब फैशन डेटा के ऊपर सिर्फ फैशन रिलेटेड रिस्पॉन्सेज दे, उसके लिए मुझे उसके थोड़े मॉडल वेट्स बदलने पड़ेंगे, थोड़ा उसका इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज हटानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो ChatGPT को पूरी दुनिया की नॉलेज है, वो इंटरफेयर कर रही है उसकी फैशन नॉलेज के साथ। अगर मैं ChatGPT की सारी नॉलेज उड़ा के सिर्फ उसकी फैशन नॉलेज रखूँ और उसके मॉडल वेट्स थोड़े चेंज कर दूँ ताकि वो सिर्फ फैशन रिलेटेड ही आउटपुट मुझे परफेक्टली बैंग ऑन दे, वो ये गलत बता देगा कि सन कहाँ से निकलता है, वो फैक्ट्स गलत बता देगा बट फैशन एकदम सही बताएगा। दैट इज़ फाइन ट्यूनिंग। You adapt a model by making changes. So fine tuning is very complicated, ठीक है, and it requires model data. उसमें हमें ज़्यादा डेटा डालना पड़ता है, नया डेटा डालना पड़ता है, दैट वो डेटा स्पेसिफिक होना चाहिए आपके यूज़ केस का। बट दे कैन इम्प्रूव योर मॉडल्स क्वालिटी, लेटेंसी एंड कॉस्ट। अब क्योंकि मेरे मॉडल के अंदर पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं है, तो मेरा मॉडल को कम टाइम लगेगा कोई भी आंसर ढूंढने में, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि लेटेंसी बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट कम, लेटेंसी कम हो जाती है, मतलब टाइम कम लग जाता है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो मेरी कॉस्ट भी कम हो जाती है, पर मेन प्रॉब्लम है कि फाइन ट्यूनिंग करने में काफ़ी कॉस्ट लगती है। बट अब तो खैर वो बेटर हो गया है। बट अदर देन दैट कॉस्ट फॉर द एंड यूज़र भी कम हो जाती है,
ठीक है, मैनी थिंग्स आर पॉसिबल विदाउट चेंजिंग द मॉडल वे सच एज अडॉप्टिंग द मॉडल टू अ न्यू टास्क इट वॉज एन एक्सपोज टू ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पर। अब हम कह रहे थे कि एआई इंजीनियरिंग में 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं इंजीनियरिंग स्टैक में। अब देखते हैं आपको वो समझ आए कि नहीं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो मैंने कहा था कि सबसे बेसिक होती है, सब लोग यही करते हैं कि सबसे पहले सब लोग एक एआई इंटरफेस बनाते हैं जो कि यूजुअली चैटबॉट्स होते हैं। फिर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं उस चैटबॉट के अंदर, उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है जब उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे होता है। कॉन्टेक्स्ट ऐसे होता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर हमने उसको बोल दिया कि यू आर अ फैशन स्टाइलिस्ट, ठीक है, और मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट क्या दिया जो भी यूज़र बता रहा है। यूज़र कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ कि मैं ब्लैक कलर की जीन्स पहनी है, मैं हमेशा ब्लैक कलर की जीन्स पहनती हूँ, मेरा मन है मैं पैंट्स ट्राई करूँ, पर फिर मैं कौन सी पैंट्स पहनूँगा, ऐसे कुछ। तो जो भी तुम यूज़र रिलेटेड या मतलब जो तुम एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हो, वर्ल्डली नॉलेज दे रहे हो, उसको हम कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो फिक्स्ड होती है कि ये काम इसको करना ही करना है। फिर हम आते हैं इवैल्यूएशन पे कि फिर हम इवैल्यूएट करेंगे पहले कि कैसा रिस्पॉन्सेस दे रहा है, फिर मैं उसकी प्रॉम्प्ट्स बेटर करूँगी, कॉन्टेक्स्ट डिलीवरिंग बेटर करूँगी ताकि वो अच्छा रिस्पॉन्स दें। फिर हम आते हैं मॉडल डेवलपमेंट पे। मॉडल डेवलपमेंट क्या करता है, जब भी हम एआई कोई एलएलएम मॉडल डेवलप कर रहे हैं तो पहले आ गया इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि हमें चाहिए मॉडल सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड करे, जल्दी रिस्पॉन्ड करे। फिर होता है डेटा सेट इंजीनियरिंग। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं मॉडल बना रही हूँ फैशन एलएलएम, ठीक है, मैं फैशन एलएलएम बना रही हूँ कोई, तो फिर मुझे जो डेटा सेट बनाना पड़ेगा वो भी फैशन बेसिस का ही। मैं पिंटरेस्ट से सारे फैशन की फ़ोटोज़ निकाल लूँगी फिर, पर क्योंकि मेरा मॉडल सिर्फ टेक्स्ट लैंग्वेज मॉडल है मेरा, इमेज मॉडल नहीं है, तो मैं उसके सारे टेक्स्ट निकालूंगी फिर कि इसको टेक्स्ट में कैसे रिलेट कर सकते हैं। फिर मैं अपने मॉडल को जितनी फैशन की थ्योरी होगी, फैशन के जितने भी एवरीथिंग रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैशन, वो सब मुझे जानना पड़ेगा। डेटा सेट मुझे पूरे का पूरा इंजीनियर करना पड़ेगा। फिर मैं उस मॉडल को ट्रेन करूँगी, मॉडल बनाऊँगी पहले तो मैं, फिर मैं मॉडल को ट्रेन करूँगी और फिर दोबारा उस पर इवैल्यूएट करूँगी। ठीक है, अब लास्टली आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी कहीं नहीं आने वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे सोचना पड़ेगा, अगर मैंने अपना मॉडल बनाया है तो मेरे को कंप्यूट्स देखने पड़ेंगे कि मेरे पास कितनी GPU है, मेरी क्या अफोर्डेबिलिटी है। फिर डेटा मैनेजमेंट, ये जो डेटा सेट इंजीनियरिंग हो रही है मेरी, उसके लिए वो कहाँ रहेगा, उस डेटा की मैनेजमेंट कैसे, कॉन्स्टेंटली उसको मेमोरी में कैसे डालना है, ये सारी प्रॉब्लम्स ये मैं आउटसोर्स कर सकती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐप डेवलपमेंट वाला पूरा मॉडल डेवलपमेंट आउटसोर्स कर सकता है, मॉडल डेवलपमेंट वाला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्स कर सकता है। ये सारा मैं क्या कर लूँगी, क्लाउड पर ले लूँगी। तो फिर मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे सिर्फ सिलेक्ट करना है मुझे ये चाहिए। क्लाउड वाला सोचेगा कि उसको कैसे लेना है, सर्व कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है, मॉनिटर करने के अलग अलग टूल्स होते हैं। तो ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कर रहा है वो, तो ये 3 लेयर्स हैं आपकी एआई इंजीनियरिंग स्टैक की। और आई होप इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिला हो मतलब अच्छा खासा इंट्रो हुआ आपका एआई इंजीनियरिंग में, एंड आई होप आपका इंटरेस्ट बना हो एआई इंजीनियरिंग में। एंड अभी तो दिस इज लेक्चर 1, होपफुली वी ऑल्सो गो अहेड टू लेक्चर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब जितनी भी एआई इंजीनियरिंग वाली बुक है चिपह्यूमन की, उतना हम पढ़ पाएँ। और बहुत अच्छी बुक है और बहुत ज़्यादा है पढ़ने को, विद एवर ग्रोइंग वर्ल्ड है ये, क्योंकि वो बुक भी अब थोड़ी सी मतलब आई वोंट से आउटडेट हुई है, आई वुड नेवर से दैट इट्स आउटडेटेड, आई एम जस्ट सेइंग कि काफ़ी चीज़ें और बढ़ गई हैं। तो उस ये इंजीनियरिंग की बुक के बाद जैसे ही हम वो पढ़ लेते हैं, और बहुत चीज़ें हमारे पास पढ़ने को, जैसे आई थिंक उस बुक में MCP सर्वर्स का वर्ड नहीं है, तो वो चीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम और मतलब देयर इज़ ऑलवेज सो मच टू लर्न, so hopefully we can go ahead.